ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹੀ, ਇਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਧੁਖਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਹੀ, ਕਾਰਣ ਤਿਨਾ ਮਾਪਿਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹੀ, ਇਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਧੁਖਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀ, ਕਾਰਣ ਤਿਨਾ ਮਾਪਿਰੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 87 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਸੱਜਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਭਾਵ 20 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ 20 ਸੱਜਣ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜੇ ਖੋਜ ਜੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਪਰ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ਿਵ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਧੁੱਖਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਖਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਪਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਧੂਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੁਖ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੁੱਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਮਾਂ ਪਰੀ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੋ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਜੀਵ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਕੇਵਲ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4 ਟਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਣ ਬੰਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਨ ਖਾਵਦੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
आखदे ने कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौहों दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत निरै। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जो तुलंबे की धरती पर गए, सज्जन ठग दी आप जियां ने कई बारी साखी सुनी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह नाल मरदाना जी सज्जन ठग दे टिकाणे पर पहुंचे। सज्जन ठग भी सोचता है कि कदों ये जो पीर आए ने, व्यापारी आए ने, ये सो जाण, इहदे इन्हां दे जीवन दा मैं घाण करके जो इन्हां दे कोल धन पदार्थ है मैं लै लिया। लंबेरी साखी है, मैं केवल इस दे जो तत्त है वो सामने रखना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह मरदाने नूं कहण लगे, मरदानिया रबाब छेड़, उस मालिक की सिफत करिए। मरदाना जी ने सूही राग दियां सुरां लाइयां ते धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर वो बाणी का शब्द उचारण किया। गुरुदेव आखन लगे कि केहां दा भांडा, काशी का भांडा बाहरों बड़ा लिशकदा है, जितनी बार मर्जी उसनूं साफ किया जाए उसके विचों मैल फिर निकल के आती है। ते सतगुरु महाराज सज्जन ठग नूं संबोधित करदे आ ये बचन उचारण कर लगे कि महाराज आखन लगे, उज्जल केहां चिलकना घोटिम घालड़ी मस, धोतियां झूठ न उतरै जे सो धोवां तिस। गुरुदेव आखन लगे एक बार नहीं, दो वारी नहीं, 100 वारी ही क्यों ना धो लिया जाए कि आदे काशी दे भांडे नूं विचों कालख नहीं लथदे। ते अगे गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, कि सज्जन वो ने जो चलदियां होइयां नाल चलन। जिथे शरीर भी संसार दे विच रह जाए ते सज्जन वो ने कि जिदा नाम परमात्मा दी हजूरी दे अंदर राहदारी करे। जिंद जान दे नाल उदा नाम परमात्मा दे घर दे अंदर उदी राहदारी करे। रे रे दरगाह कहे ना को, ते उत्थे केवल ते केवल हरि परमात्मा दा बख्शिया हुआ नाम ही सहाई है। इसलिए गुरुदेव आखते ने कि सज्जन ते ओ ने, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। जिथे लेखा मंगिया जाए उत्थे फिर नाल खड़े होण वो सज्जन ने। ते गुरुदेव पातशाह आखते हैं कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, बगले ने भावें बाहर तू दे खंभ चिट्टे ने। गुरुदेव आखते हैं कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, तीर्थां पर जाके क्यों ना टिक जाण। पर पातशाह आखते हैं कि घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कई हन, उन्हां दा आहार मच्छियां ते डड्डियां ही ने। ते मैनू कहण देना कि धर्म की दुनिया अंदर भावें मनुख ने चिट्टे कपड़े क्यों ना पाए होण, जे हिरदे अंदर सच नहीं तो उसकी हालत उस बग वर्गी ही है। जिसनों गुरुदेव आखते हैं कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, घुट घुट जियां खावणे बग्गे ना कईन। वो कादा चिट्टा है, केवल बाहर का लिबास ही सज्जन ठग वर्गा धर्मिया वाला है, पर हिरदे अंदर सच नहीं। अज गुरु नानक सच्चे पातशाह जिथे रहमत करते ने उत्थे धन बाबा फरीद साहब जी ने रहमत की। आखणगे गली सो सज्जन भी, गल्लां दे नाल ते बड़े मित्र बने हुए ने, पर जे लभण जावां असली मित्र ते एक ढूंढेंदी ला लाहा, एक भी फिर असली मित्र नजर नहीं आंदा जिहड़ा मेरा परमात्मा दे नाल, रब दे नाल, रब दी सिफत सलाह दे नाल जोड़ दे। ये केवल बाहर दे भुलेखे पाण वाले ही ने। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी उन्हां दियां वार दियां पौड़ियां दे अंदर 5 गल्लां दा 5 दृष्टांत दिते ने भाई साहब ने। वो कहंदे कि इन्हां बाहर दे दिखदे होए पसारे दे विचों मनुख नूं भुलेखा पैंदा है, पर असली सज्जन ते गुरु हो सकदा है, असली मित्र परमात्मा हो सकता है, और असली मित्र जिहड़ा है वो गुरमुख हो सकता है। नहीं तो बाहर का पसारा केवल ते केवल भुलेखा पांदा है।
भाई साहब ने एग्जाम्पल दी, आखन लगे कि हर चंदौरी गुरबाणी विच बड़ी बार आया है। हर चंदौरी तो भाव है कि बारिश तो पहला जदों बदल बनते ने ते कदे अरशां वल आकाश वर नज़र मार के देखना तुसी, इवें लगता है कि जिवें हरी चंद की नगरी होए। सनातन धर्म के अंदर एक गाथा है कि राजा हरी चंद जो बड़ा धर्मी सी, दानवीर सी, पर एक समा ऐसा आया कि हरी चंद राजे नूं अपना राज भाग त्याग के चंडाल बनना पिया ते उहदे पुत्र की मौत हो गई। अखीर उन्होंने शमशान घाट लैके आए ते जिस चंडाल का करके काम करता सी, पैसे लेके अपने बच्चे की अगन नूं चिखा नूं अग लगाई। ते अज भी तुसी चले जाओ ना जदों क्रमिशन ग्राउंड, ते उत्थे हरी चंद नाम के राजे की जो चंडाल के रूप दे विच एक सेवा निभांदा सी, उहदी मूर्ति बनी हुई है कई थावां दे उपर। सनातन धर्म के अंदर मनिया जाता है, पर जदों वो संसार तो रुखसत होने लगा, जीवन अंदर एक कदी भुल कर बैठा ते अपनी नगरी दे समेत वो अरशां वल तुरिया ते स्वर्ग दे विच उहदी नगरी नूं प्रवानता नहीं मिली ते वो नगरी जिहड़ी है अज भी बदलां दे विच नज़र आंदी है। ये उन्हां दा मनना है। भाई गुरदास जी ने उस हरी चंद की नगरी की गल की, हर चंदौरी की गल की, जो सनातन धर्म के अंदर मनिया जाता है कि अरशां दे अंदर वो हरी चंद की नगरी नज़र आती है, पर जिवें हवा दे नाल बदल अपनी दिशा बदलते ने, वो नगरी जो नज़र आ रही सी वो लोप हो गई, वो छुप गई बदलों के थले। महाराज आखदे कि केवल ते केवल एक भुलेखा ही है। फिर भाई गुरदास जी दूसरी गल करते ने, आखदे ने कि जदों मारूथल के अंदर रेगिस्तान के अंदर हिरन दौड़ता है ना, सूरज दीयां किरणां पैंदियां ने धरती पर नूं छलावा लगता है, भुलेखा पैंदा है कि पानी चमक रहा है, वो दौड़दा रहा ते जिवें अगे जांदा है पानी होर अगे वध जांदा है, अखीर उहदे जीवन का अंत हो गया। वो भुलेखा जीवन अंदर बनिया हुआ ही जीवन तो रुखसत कर गया हिरन, जिसनों भाई गुरदास जी आखदे ने कि जैसे मृग तृष्णा लो धावै, मृग त्रिखा वंग आवत न शांत, भ्रमत हिरानो है। तीसरी गल भाई साहब गुरदास जी ने की, कहते कि एक जीव जो साध मरादा अपना जीवन गुजारदा है, दिहाड़ी मजदूरी करके रात नूं सुपना देखता है कि राजा बन गया, दुनिया के सारे पदार्थ उहदे चरनां दे पे हुए ने। कुछ समय बाद नींद टुटी, सुपना टुटिया, हकीकत उही घर नज़र आया साध मरादा, उही घर दे अंदर उही समान जो जीवन का गुजरान करता है। भाई साहब आखन लगे कि उस भुलेखे नूं, सुपने नूं हकीकत ना जान लई, हकीकत जान के अपने काम तो जे हट गया तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि घर दे भुखे रहने के हालत बन जाएंगे, क्योंकि सुपना हकीकत नहीं है, भुलेखा है। चौथी गल भाई साहब लिखते ने, वो आखते ने कि जिस तरह पेड़ की दरख्त की छां के थले मनुख बैठा, ये छां सदा रहन वाली है, पर थोड़े समय बाद वो छां जिहड़ी है वो बदल जाती है। ये माया की छां भी चार दिहाड़े की है, सदा रहन वाली नहीं। तो अखीर दे भाई साहब आखते ने कि बाजीगर की पंजवीं, पिंडां थावां दे उपर बाजीगर आके बड़ा तमाशा दिखाते ने, अपने थैले दे विचों कदे की समान कढ़ना, कदे की लोकां नूं दिखाना, ते कुछ मिनटां बाद वो सारा समेट के एक कटोरा लैके लोकां दे सामने रखते हैं। कहते कि साडी इस कटोरे अंदर टका 2 टका पाओ। किसी ने सवाल किया भी 4 मिनट पहले तो बड़ा समान दिखाया तुसी, ते हुण तू मंगन लग पे, आखन लगा वो मेरा एक रोजगार है, वो दिखाने वाला एक भुलेखा है, असल हकीकत नहीं है। हकीकत वही है कि जो तुसी 4 टके दोगे उसदे नाल मैं अपने घर का गुजरान करांगा, वो तो केवल भुलेखा सी। ते धन गुरु अर्जुन देव महाराज नूं तख्त उपर नशीन होए, ते इतिहास कहता है कि बाबा पृथ्वी चंद सके भरा जड़े ने
बड़ी विरोधता कमाई उन्होंने इत्थों तक कि लंगर दे जो रसद आंदी सी, समान आंदा सी, अपने मसंदां दे चेलियां की सहायता दे नाल लंगर आने वाले रस्ते विचों लंगर अपने घर वाल लै जाते सन। ते ऐसा समा आया गुरु घर के लंगरां दे कि लंगर मस्तानी हो गए, छोलियां दे दाने खा के गुरु की संगतां नूं और धन गुरु अर्जुन देव महाराज नूं छोलियां दाने तक खाने पे। पर सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदास जी और बाबा बुढ़ा जी उन्होंने लोगों नूं उस भरम दे विचों कढ के सच्चे गुरु के चरणों के नाल जोड़िया कि यह प्रति चंद भुलेखा पाने वाला है, हकीकत नहीं है। गुरुदेव आखदे ने कि दुनिया की मित्रता केवल भुलेखे तक है, कोई विरले ने जिहड़े परमात्मा के चरणों के नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने गुरबाणी ने गुरमुख किया है। इतिहास के चो गल याद आई, मंसूर ने किसी वेले ये बचन कहे सन, अनल हक अनल हक, ते धर्म के लोगों ने उन्होंने प्रवान नहीं किया, ते ये कहा कि मंसूर नूं सूली पर चाढ़िया जाए, ये तन के टुकड़े टुकड़े किए जान। खैर वो दिन आया, लोगों ने मंसूर नूं पत्थर मारे, मंसूर हसदा रहा। पर एक मनुख ने मंसूर दे फुल मारिया ते मंसूर रो पिया, कुरलाह पिया। मंसूर दे जदों हाथ कटे गए, उस तो बाद मंसूर दे पैर कटे गए, ते जदों मंसूर की जेवा कट्टन लगे ना, आखन लगा मैनू कुछ पल दे दिओ, मैं उस खुदा की नमाज पढ़ना चाहता हाँ, रब नूं याद करना चाहता हाँ। मंसूर ने मालिक के चरणों दे विच नमाज अदा की, रब नूं याद किया, ते आखन लगा ए खुदा, ये लोग मेरी हकीकत तू जानू नहीं ने, इन्होंने जो पाप कमाया है, जो गुनाह किया है, इन्हों के गुनाह नूं तू बख्श देना। ते किसी ने सवाल किया मंसूर नूं, मंसूर लोगों ने तेनों पत्थर मारे, तू हसदा रहा, पर किसी ने फुल मारे तू रो पे। कहन लगा ये लोगों ने पत्थर मारे, ये मेरे अंदर नूं नहीं जानते, पर जिसने फुल मारे ना वो मेरा मित्र है, उसका नाम सिबली है। कहने मेरी हकीकत नूं जानदियां होया भी भावें उसने फुल ही मारे कहदा मित्र है कि मेरी हकीकत नूं जानदियां होया भी उन्हें मैनू फुल मारिया। ये तो उन्हां दी कतार दे खड़ा होया है। बाबा फरीद साहब ने गली सो सज्जन भी गल्लां करके ते 20 मित्र ने, एक ढूंढेंदी ना लहा, पर असली मित्र कोई नहीं मिले। जिहड़ा परमार्थ दे राह दे उपर तुर पे, नहीं ते मनुख लोकां दा साथ देंदा है। जो लोग कर्म करते ने वो कर्म करता है, मित्रता उन्होंने नहीं निभाई। ते पातशाह आखदे ने कि असली मित्रता निभाने वाला या ते गुरु है, या रब है, या गुरमुख है। जदों असी वाहिगुरु की गल करते हाँ, सतगुरु पातशाह आखदे ने कि असली मित्र वो परमात्मा है, जिसनों गुरबाणी ने इस तरह बयान किया है। महाराज आखदे ने कि औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रतिपाले, प्रभ स्यों लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। जिहड़ा परमात्मा आद तो लैके अंत तक सहाई है, धन हमारा मीत, मेरा वो मित्र है, रब मित्र है मेरा। जिहड़ा ईत ऊत नहीं विछुड़ है, सो संगी गनी है। जिहड़ा लोक दे अंदर भी ते परलोक दे विच नहीं विछड़े, असल दे विच ओ संगी परमात्मा मेरा मित्र है। ते मनुख देखो अज कोई मित्र बनया, कल कोई होर मित्र बन गया, पर जिहड़े गुरमुख ने वो केवल अपने सच्चे मित्र दे उपर ही भरोसा रखते ने। एक कवि ने बड़ी प्यारी गल लिखी है। कवि कहता है कि भवरा जा जा के फुलों के उपर बैठता है, सुगंधी लैंदा है, रस लैंदा है, सारे फुलों के उपर बैठा भौरा, पर चंबे के फुल के उपर नहीं।
ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਚੰਪਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਪਾ ਤੁਝ में 3 गुण, रूप रंग अरबास, कि हे चंपा दे फुल तेरे विच 3 गुण ने। की गुण ने? तेरा बड़ा सोहना रूप है, तेरा रंग भी बड़ा सोहना है, ते बास तू भाव तेरी खुशबू भी बड़ी सुंदर है। वो अवगुण तुझ में क्या भंवर न बैठे पास। तेरे अंदर ऐसा की अवगुण है कि तेरे को भौरे आके नहीं बैठते। ते चंपा दे फुल ने फिर कवि नूं जवाब दिता। कवि दी अपनी सोच है, बड़ी डूंगी सोच दे गया। ते चंपा आखन लगी, साजन मुझ में 3 गुण, रूप रंग अरबास, ठोर ठोर के मीत को कौन बिठावे पास। जिहड़ा ठोरां ठोरां दे उपर भटकदा है, हर थां दे उपर भटकदा है, उहनूं कौन अपने कोल बिठाए। गली सो सज्जण भी, असली मित्र ते वो है जो परमात्मा दे नाल जुड़िया होया है, प्रभु की बंदगी करने वाला। सो गुरुदेव आखदे ने कि एक ते रब परमात्मा जिहड़ा है वो मित्र है, फिर दूसरे नंबर पर आखदा है कि गुरु मित्र है। एक नाल होर अर्ज करदे हां, जदों असीं बाणी पढ़दे हां ना, बाणी पढ़न वेले 3 हाजरियां बड़ी जरूरी ने। जे मनुख बाणी पढ़दियां सोचेगा भई मैं कल्ला ही बाणी पढ़ रहा, तो फिर वो बाणी मन करके नहीं पढ़ सके। इसलिए गुरुदेव आखते ने बाणी पढ़ते हैं 3 चीज़ों की हाजरी बड़ी जरूरी है। एक तो रब दी हाजरी, जिस दे रब दे नाल असीं गल्लां कर रहे हैं, भावें सहज पाठ कर रहे हैं, भावें नितनेम कर रहे हैं, उस वेले प्रतीत होए कि रब मेरी नाल गल्लां कर रहा है। बाणी पढ़दियां ये भरोसा होए कि जो जपजी साहब कर रहे हैं, सहज पाठ साहब कर रहे हैं, रब दे नाल गल्लां कर रहे हैं। दूसरी हाजरी गुरु की हाजरी, कि गुरु मेरे नाल है, अंग संग है। केवल ये नहीं कि बाहरों कहता कि गुर मेरे संग सदा है नाले। गुरुदेव ते गल्लां करदे ने कि मेरे मीत गुरुदेव मुकु राम नाम प्रगास। गुरु दे नाल गल्लां हो रही ने। जदों ये अरदास करते हाँ, गुरा एक दे बुझाई, उस वेले गुरु दे नाल गल है। सबना जियां का एक दाता सो मैं, विसर ना जाए गुरु की हाजरी। ते तीसरी मन की हाजरी। शरीर भावें बाहर है गुरु घर तो, पर जे मन गुरु की हजूरी दे विच है तो वह हाजरी प्रवान है। सो पहले परमात्मा नूं अपना मित्र जानना, दूसरा फिर गुरु नूं अपना मित्र जानना। जिसलिए गुरुदेव पातशाह आखते ने कि मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। ते गुरु नूं मित्र किया है सतगुर ने कि मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। ये मेरी रहरास है दाता कि गुरु मेरा मित्र है। सतगुर पातशाह बाणी अंदर आखते ने कि सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हूँ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। कि गुरु नूं बाल सखाई क्या है बाणी ने। ते धर्म गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आनंदपुर साहब की धरती है। ते गुरुदेव पातशाह चमकौर की धरती पर जदों शहादतां होईयां ना, वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह की शहादत हुई, गुरु के मरजेवड़ियां की शहादत हुई। धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज चमकौर की गढ़ी छोड़ के निकले ते भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी नाल ने। ते देखो वो सत्कारयोग साहिबजादियां दे शरीर पे हुए ने। ते भाई दया सिंह दियां अखां पर आईयां, आखन लगा गुरुदेव कैसा भयानक समा है कि अज कंचन वर्गे साहिबजादियां दे शरीर इस जमीन के उपर पे हुए ने। कमर कसा खोल के साहिबजादियां दे शरीर के उपर देन लगे। कलगीधर पातशाह महाराज ने हाथ पकड़ लिया, आखन लगे दया सिंह इना कर कि इत्थे केवल साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह ही नहीं,
इत्थे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह उन्हां दे भी शरीर ने। इत्थे होर 35 गुरु के प्यारे सिखां दे शरीर पे हुए ने। जे तेरे कोल सारियां वस्ते कफन होए ते सारे गुरु के सिखां दे उपर दे के तां मेरे साहबजादियां पर देई, क्योंकि मैनू अपने पुत्रां और गुरसिखां दे कोई वितकरा नहीं है। जिसनों धन गुरु अमरदास आखदे ने कि गुरसिखां इको प्यार, गुरमितां पुत्तां भाईयां, गुरु किसी नाल वितकरा नहीं करता। सो गुरुदेव आखते ने कि गुरु नूं अपना मित्र जान, ते तीसरे नंबर पर आखते ने कि गुरसिखां नूं जो परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े हुए ने, असल दे विच ओह मित्र ने। जिसनों गुरबाणी आखदी है कि जिन्हां दिसंदड़ियां दुरमत वंझै, मित्र असाडड़े से हों ढूंढेंदी जग सबाया, जन नानक विरले की। जिन्हां दे दर्शन करदियां होइयां भैड़ी मात दुरमत वंझै तो भाव नाश हो जाए। ते अरदास के अंदर असी रोज ये पढ़ते हैं कि सही प्यारे मेल दाता मैनू उन्हां गुरमुख प्यारियां गुरमुख संगतां दे नाल मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे, उन्हां दा नाम चेते आए, उन्हां गुरमुखां दे नाल मैनू मेल। जिन्हां दिसंदड़ियां दुरमत वंझै, मित्र असाडड़े से हों ढूंढांदी जग सबाया, जन नानक विरले के। सतगुरु महाराज आखते ने कि नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्किया, ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया ना जाई छोड़, उन्हां गुरमुखां दी संगत कर। ते गुरु अर्जुन देव पातशाह महाराज ने जो आरंभता दे अंदर में बचन आप नाल साझे कीते सन, अरदास करते ने कि कोई जन हर स्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै, प्राण अकोर। जिसनों गुरुदेव आखते ने कि जा के दर्श पाप कोट उतारे, जिस दर्शना दे नाल करोड़ा पाप नाश हो जान। भेटत संग ए भोजन तारे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। जा का शब्द सुन सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे, जा की धीरक इस मनै सधारे, जा के सिमरन मुख उजलारे, प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। अज दे श्लोक अंदर बाबा फरीद साहब आखते ने कि गली सो सज्जन भी, एक ढूंढेंदी नाल नहा, पर ढूंढदियां होइयां एक भी वो असली सज्जन नहीं मिलिया, जिहड़ा ये दुखां दी नदी दे विचों, वासनावां दी विकारां दी नदी दे विचों कढ के परमात्मा दे चरनां दे नाल जोड़ दे। धुखां ज्यों माली अंदरों में धुखदी हां, कारण की है तिन्हां मां फिरी के सत्संगत रूपी उन्हां गुरमुखां दे मिलाप नहीं होया, उन्हां दी संगत नहीं प्राप्त होई। यही अरदास मालिक दे चरनां दे विच कि दाता नाम जपण वालियां दी संगत बख्शिश करके असीं इस मालिक दे नाम दे नाल चरनां दे नाल जुड़ सकीए। सतगुर किरपा करन। बोलदियां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श देना